will also get the benefit from this session if they are unable to join. Some people are mostly people are celebrating all the things. Celebration is good, but same time we need to also focus on our prosperity. Are you agree with me? Yes, yes. Okay, so let's start today's session. So perhaps my camera is also good. Okay, so welcome to Sunday Success Session. As you know that I'm able to join. Some people are mostly people are celebrating all the things. Celebration is good, but same time we need to also focus on our prosperity. Are you agree with me? Yes, yes. Okay, so let's start today's session. So perhaps my camera is also good. Okay. Okay, great. So welcome to session. As you know that on every Sunday we are connecting at 11 o'clock with a different success related topic. So today's topic is critical thinking to problem solving. So every हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं. किसी को भी पूछो अरे यार ये लफड़े में फंसा हूँ, ये प्रॉब्लम्स अभी चल रहा है. So let's start how we'll handle that problem and how we will solve that problems. So as you know that as this picture I show you that this is a cubic cube. Already almost all 99 people are just playing this game in childhood or in right now in their professional life also. कभी भी कोई भी मैनेजर बड़ा डायरेक्टर बड़ा सीईओ को बड़ा फाउंडर के पास जाओगे उनका कैबिन के पास, ये एक मतलब नॉर्मल एक चीज है कि ये रहेगा ही रहेगा. तो ये एक प्रॉब्लम्स है, ये एक चीज है जो कि क्यूब अपने को बॉडी अपना माइंड को एक कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत सकारात्मक भूमिका लेता है. सो प्रकाश आर यू देयर? So when you come back just on your video. So ये क्यूब क्यों रखते हैं पब्लिक? ये क्यूब इसलिए रखते हैं कि उनका माइंड को कंट्रोल वो करेंगे एंड वो एक फोकसली काम करेंगे एंड वो रिलैक्स होंगे. उनका जो मतलब वो जो काम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बोर्डम आ गया है या जो मेंटल स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे. ये सब काम के लिए वो सब करते हैं. ये छोटा छोटा गेम अप्लाई करते हैं. तो ये क्रिटिकल, ये गेम भी ऐसा गेम है कि अनलेस अंटिल यू प्रैक्टिस यू कैनॉट डू. तो मैं अगर करूंगा तो मैं परहाप्स एक दिन ले लूंगा लेकिन नहीं कर पाऊँ. आप अगर करेंगे तो परहाप्स आप 1 घंटे में कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो. प्रैक्टिस प्ले ए विटल रोल ऑन दैट क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो. तो क्रिटिकल थिंकिंग जैसे एम आई ऑडिबल ना? Yes, yes, yes. ओके. तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत, मेरा एक सेशन है पूरा 1 डे का सेशन ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. आदमी लोग बोलते हैं अरे सोचने के लिए क्या क्लास लेना है? ये सोचने के लिए भी एक क्लास होना चाहिए. सोचने के लिए भी आपको लर्निंग करना चाहिए. कैसे आप सोचते हो, कैसे आप सोचते हो वो एक चीज है जो कि मतलब सोचने में जो हम लोग एफर्ट्स दे रहे हैं, जो टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, तो उसका फुल रिजल्ट आना चाहिए, आउटकम आना चाहिए उसमें से. अदरवाइज वी कांट डू एनीथिंग. वो टाइम वेस्ट हो जाएगा. So Prakash, if you are there, then I can't hear you. So direct as Sujit is our old mentee, so we will just go to that directly to the topic as it is already late. Or just let me know once you join. So before start any sessions, I am telling about myself. So right now it is not required to go all the things. So here I am just passing that screen. Here I am telling that every people are responsible for their success, not their mentor, not their father, not their boss, not their any supervisor. They are only responsible for their success. So to get that success, we need to go through that various process. So critical thinking also a um, a major area where
you need to grow yourself. So let's start the topic, critical thinking to problem solving, how we solve our problems. Every people, as I told you, हर एक आदमी मतलब प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, वो छोटा हो या मोटा हो, ये इधर नरेंद्र मोदी हो या अंबानी हो या मानस हो या सुजीत हो, हर एक आदमी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू में करेंगे, एज क्रिटिकल थिंकिंग इज प्लेइंग ए विटल रोल। ओके, सो व्हाट इज द क्रिटिकल थिंकिंग? सुजीत, आपके हिसाब से क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? थिंकिंग तो सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? Critical thinking means we can't reply directly. Indirectly we will reply. Not like that. some कुछ दूर तक ये सही है, लेकिन नॉट राइट दैट। हम लोग मतलब डिप्लोमेटिकली हैंडल करना, दैट इज डिफरेंट। लेकिन ये हैंडल नहीं, सोचना, हम लोग को अपना अंदर ही सोचना है। क्या क्रिटिकल थिंकिंग? हम लोग तो सोचते हैं हर एक काम, सपोज आपने ज्वाइन किया अभी, तो आपने सोचे, भले ही वो 1 सेकंड हो या 1 मिली सेकंड हो, आपने सोचे। लेकिन क्रिटिकल सोचना, कि क्रिटिकल सोचना आपने पहले से आपने किए होंगे, राइट? कि मानस नायक का सेशन बहुत मेरा लाइफ में मतलब एक बदलाव लेके आ रहे, मैं उनका सेशन ज्वाइन करूंगा, मैं कुछ सीखूंगा एंड मैं कुछ अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा। ये थिंकिंग का आउटपुट हो सकता है। तो अभी का ये मैं जो आपने स्टेप लिए ज्वाइन करने के लिए, तो आपको कुछ मिली सेकंड के लिए सोचना पड़ा होगा, इनमें सोचना तो है ही। बिना सोच से समझे कोई भी पर्सन से कुछ भी नहीं कर पाता है, राइट? तो हर एक अपना जो ब्रेन है, अपना जो ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम्स है। अब सोचो, जैसे मतलब पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, और एक प्रॉब्लम्स आया अपने पास, तो और एक जब भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो हम लोग सोचेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम को कहाँ पे मैं फिट करूँ। तो जैसे मतलब मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स टेढ़ा मेढ़ा रहता है, राइट? कोई सीधा साधा नहीं रहता है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा को भी अपने को मतलब जगह बना के रखना है अपने दिमाग में। अरे ऐसे ही बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा चीज, टेढ़ा मेढ़ा प्रॉब्लम्स दिमाग में है, टेढ़ा मेढ़ा चीज करने का एक्शन प्लान भी ऐसा है, राइट? तो उसी समय अपने को देखना है कैसे कहाँ पे फिटिंग करना है उसको। तो ये एक एक क्रिटिकल थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग का मेन आपको मैं बताऊं, एक ये है, एक एनालिसिस करना। पहले आपने देखे उसको, जैसे पिक्चर में देखा, पिक्चर में जैसे आपने देखे कि ये एक चीज है, ये मैंने कहाँ पे फिट करो, तो इसका मतलब ये हो कि पहले आपने एनालाइज किए, राइट? एनालाइज किसको किया आपने? कि जितना भी है आपको जो दिखाई दे रहा है चीज, उसका जो फैक्ट है, जो सही सही घटना है, कौन से एंगल में वो टर्निंग है, कौन सा टेढ़ा है, कौन सा मेढ़ा है, एंड एविडेंस। सपोज वो दिखाई नहीं दे रहा है आपने को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका एविडेंस क्या है? ये जो फैक्ट है वो एविडेंस हो सकता है, जो फैक्ट है वो दिखाई दे रहा होगा, जो फैक्ट है हम लोग उसको टच भी कर पा रहे होंगे, राइट? एंड ऑल द आर्गुमेंट्स, पीपल आर डूइंग दैट, ऑल द आर्गुमेंट्स, वो तीनों चीज को अपने को एनालाइज करना है, खुद का अंदर एनालाइज करना है। एंड कैसे एनालाइज करेंगे? हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ये फैक्ट को, कौन क्या बोल रहा है, कैसा ये एविडेंस दिखाई दे रहा है, ये फैक्ट कैसा है, उसका अंदर कितना गहराई कितना है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे क्यों करेंगे? एक जजमेंट देने के लिए। ओके, एक जजमेंट देने के लिए हम लोग एनालाइज करेंगे, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अपना लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम को हम लोग को सोचना है, हम लोग को देखना है, हम लोग को उसका अंदर तक, गहरे तक जाना है कि हम लोग को क्या एक डिसीजन लेना है। तो डिसीजंस लेना है, एक डिसीजन मेकिंग में या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये दोनों चीज में आपको क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा तो डिसीजन आपने जो लेंगे वो रॉन्ग हो सकता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस 99% रॉन्ग हो सकता है बिना सोचे सोचे। आपने भी सुने होंगे आपका लाइफ में बहुत सारे डे टू डे आदमी लोग, दोस्त लोग या बॉस कॉलीग सब, अरे सोच समझ के जवाब देना, क्या ऐसे बिना सोचे समझे? तो आपने थिंकिंग नहीं की, क्रिटिकल थिंग्स ऊपर ऊपर से आपने जस्ट जो आया 1 मिली सेकंड में, बिना एक्सपीरियंस का जो 1 मिली सेकंड में आपका आया, उसको आपने जवाब दे दिया, राइट? आर यू एग्री विद मी? Sujit, Prakash, are you agree with me? Yes, yes, yes. Okay, great.
सो दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग। हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा, अपने पास जो भी है हम लोग को ऑब्जर्व करके एनालाइज करना पड़ेगा, आर्गुमेंट्स हो या जो आप लोग को दिखाई दे रहा है या जो आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, जो आप लोग छू सकते हैं, जो हम लोग नहीं छू सकते हैं, उसको सबको एनालाइज करना है एक जजमेंट देने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए, राइट। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है अपना लाइफ में? क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये अपना क्रिएटिव को बहुत इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। जो कोई भी नहीं सोचा होगा वो हम लोग ने सोच लिए होंगे, या जो कोई भी मतलब यू नो जैसे कोई सोचा भी नहीं होगा कि अपना हाथ से हम लोग एक मोबाइल फोन आएगा एक दिन, ये मोबाइल फोन में हम लोग को ना चिट्ठी लेटर भेजने की जरूरत है, ना बैंक को जाने की जरूरत है, ना किसी को पर्स में से पैसा निकाल के देने की जरूरत है। ये सब आ जाएगा बोल के, जब भी मोबाइल फोन नहीं था कोई भी सोचा नहीं हुआ। तो ये एक चीज आता है, एक आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग सोचते हैं, जब भी अंदर तक गहराई तक हम लोग को सोचते हैं, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हम लोग क्रिएटिव माइंडसेट नहीं लेंगे, हम लोग अपना जो भी सोचे हम लोग बोलेंगे मैं महाज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ, तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सोचना, खुद का आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। आत्मनिरीक्षण, अंदर से झांकना जरूरी है, खुद सोचना जरूरी है। ये इसलिए नहीं अपना क्रिएटिव माइंडसेट को हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा। सेकंड, ये हम लोग को हेल्प करेगा कोई एक डिसीजन लेने के लिए। हर एक चीज में डिसीजन की जरूरत है। जैसे मैंने बताया, आपने जूम क्लास अटेंड किए तो एक डिसीजन लिए, तो वो डिसीजन से आपका माइक्रो मतलब थिंकिंग होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेजर क्रिटिकल थिंकिंग क्रॉस कर लिए होंगे, राइट। या अभी जैसे प्रकाश है, या जैसे मतलब 10-12 आदमी ने रजिस्टर किए थे लेकिन कोई नहीं है, तो वो सोचे भी नहीं है, अपना लाइफ के बारे में सोचे नहीं। उस वक्त रजिस्ट्रेशन करते वक्त सोचे कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद में भूल गए, क्योंकि उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए होंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब भी नया साल चालू होता है, ओके, बहुत सारे आदमी रिजोल्यूशन बना देते हैं। मैं बड़ी बिल्डिंग करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं इतना वेट लॉस करूंगा, मैं गाना गाऊंगा, मैं बुक लिखूंगा, बहुत सारा। लेकिन जिम बाय फरवरी तक खत्म हो जाते हैं, कोई भी मतलब खाली रहता है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख खचा खच रहेगा, जाने के लिए आने के लिए भी रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन फरवरी तक वो पूरा एंड हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आपने डिसीजन लिए हैं सोच समझ के, क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए, तो आप जरूर अचीव करोगे। तो मैंने अभी एवरी कोच में, नॉट ओनली मी, मैं जानता हूँ कि ये इंडस्ट्री में जितना भी कोच है, जितना भी मेंटर्स है, जनवरी महीना उनका, जनवरी दिसंबर से जनवरी उनका शेड्यूल्स पैक रहते हैं। इवन माई शेड्यूल्स आर पैक्ड। तो मेरा एक सोचना था, मेरा एक बोलना था कि भाई हर एक यंगस्टर को, हर एक आदमी को, इंसान को जो अपना ओनरशिप लेते हैं कि वो रिजोल्यूशन कैसे सेट करेंगे। सेट नहीं करना है, मेरा एक ही कहना है, सेट नहीं करना है रिजोल्यूशन, आपको हमेशा बनाना है रिजोल्यूशन को, खुद का बनाना है। तो बनाते वक्त आप जैसे मूर्ति बनाते हैं, कलाकार एक मूर्ति बनाते हैं, तो आप सोचते हैं कौन सा मिट्टी से मैं बनाऊं, मिट्टी में कितना मतलब ये वर्टिकल्स गम दूं, कितना और क्या क्या मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो दूं, कैसे बनाऊं। सेट नहीं करता है कि मतलब मुझे मिट्टी ऐसे सेट करना है, तो कोई भी मिट्टी लाके नहीं करता है, राइट। आर यू एग्री विथ मी? या प्रकाश है, या सुजीत, आर यू एग्री विथ मी? Yes, yes, sir. ओके, प्रकाश परहैप्स गॉन, हिज नेटवर्क हैज गॉन। ओके, ग्रेट। तो ये हेल्प करता है अपने को एक डिसीजंस लेने के लिए। ये स्ट्रेटजी, आप कुछ बोल रहे हो? ओके, सो ये क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरत है? सॉरी। अच्छा, कोई बता क्या बैक टू बैक क्लास में तो गला भी बहुत खराब हो जाता आवाज भी आ रहा ना? हाँ, बता नहीं कैसे
पहले लॉगिन आप अनम्यूट में चले जाओ। थोड़ी देर के लिए बंद कर दो नहीं सेटिंग तो ये हेल्प करता है अपने को अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए, अपना खुद का मोटिवेशन देने के लिए, अपना गोल को अचीव करने के लिए। तो मैं ये बता रहा था, हमेशा मतलब दिसंबर जनवरी में हर एक कोच पैक रहते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से होते रहते हैं, अपना खुद का मतलब ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि ये मोटिवेशन देने के लिए। लेकिन मैं मोटिवेशन का ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जो कि दारू की जैसे शाम को पियो सुबह उतर जाएगा, यानी ऐसा नशा करना चाहिए अपने को जो लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो वो इंस्पायर होना चाहिए। मैं हमेशा मतलब आप मेरा लोगो देखे होंगे, जैसे MN यहाँ पे जो है आप देखे होंगे, ये इंस्पिरेशन फॉर योर ग्रोथ, आपका ग्रोथ के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बना चाहता हूँ। हर एक कोच का भी ऐसे मानना होगा, आई एम श्योर। लेकिन ये जब भी मैं बात करता हूँ, इससे रिजोल्यूशन को हम लोग कैसे मेक करना है, बनाना कैसे है रिजोल्यूशन एंड उसको अचीव कैसे करना है। तो सुजीत, आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखे, मैंने दिसंबर लास्ट तक बना दिया 2 वीडियो, कैसे मेक करना है, रिजोल्यूशन कैसे बनाना है एंड उसको कैसे अचीव करना है। 20 मिनट का वीडियो, एक वीडियो आप देखो एंड ऐसा वो रिजोल्यूशन आप बनाओ। ऑलरेडी बना दिए होंगे, नॉट टू वरी, आप फिर से उसका ऊपर काम करो। आपका ये जो मैंने बताया स्मार्टर फॉर्मूला बनाने के लिए, तो फिर डबल स्मार्टर होगा, डबल स्ट्रॉन्गर होगा वो गोल, तो आप इजीली अचीव कर पाओगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको उस वक्त हेल्प करेगा आपका व्हाट यू कॉल रिजोल्यूशन बनाने के लिए भी। तो ये रिजोल्यूशन हम लोग को जब भी बनाते हैं वो एक हर एक स्किल्स को हम लोग, जो अपने पास जो स्किल है, जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसका ऊपर बना देते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग स्किल को हम लोग को इलास्टिक की जैसे स्ट्रेच नहीं करते हैं, राइट। तो ये इलास्टिक से जैसे स्ट्रेच करना हर एक आदमी का काम है। सिर्फ अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको क्रिटिकल थिंकर होना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग को आप एडॉप्ट करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग में आप मास्टर होना चाहिए, राइट। अदरवाइज यू कांट सक्सेस। क्योंकि आजकल बहुत सारे पब्लिक बिना सोचे समझे बात करने लगते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो आप भी वैसे ही रहोगे। आप आउट ऑफ द बॉक्स, आप अलग से लाइन लगा नहीं पाओगे, अलग से सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि कॉग्निटिव स्किल्स जो है जो भी वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, सोच समझ कर बात करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मतलब क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ कैसे भागना है आपको। सम ऑफ द मतलब और कुछ रीजंस मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये इसमें एक जैसे कि मैंने इधर लिखा, क्रिटिकल थिंकिंग इज द इंटीग्रल टू प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया भी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करने के लिए, या कोई भी डिसीजन आपको लेना है उसको डिसीजन का ऊपर मतलब काम करने के लिए आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। someone has joined. Can you am I audible to you? Am I audible and visual to you? Yes. Okay, Sujit. Okay. Yeah, Jawaharlal Bhumi. Hi, Jawaharlal. Jawaharlal, am I audible and visual to you? Jawaharlal ji. जवाहरलाल जी, मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? मेरा बात आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो मुझे? ओके, सो जवाहरलाल जी, जब भी आपका, जवाहरलाल जी आप सुन पा रहे हो या अनम्यूट कर लो? जवाहरलाल जी, आप मेरा बात सुन पा रहे हो? ओके, सो ये थोड़ा चीज देखो, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ये बहुत सारे रीजंस में लिखा हूँ। ये क्रिटिकल थिंकिंग जब भी होगा वो आपका डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा, आपका एबिलिटी को बढ़ाएगा, जो एबिलिटी में आप आने वाले दिन में कुछ भी इमोशन को आप कर पाओगे। क्योंकि आजकल सब जगह पे इमोशन आ जाते हैं,
ये मैं करूं या ना करूं, एक छोटा सा अटैचमेंट रह जाता है कि ये करने से तो ये नुकसान है। ये नुकसान जितना भी है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, मतलब टेम्परेरी नुकसान रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देगा। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपको बार बार इवेल्यूशन स्किल्स बढ़ाएगा, आपका रिलेशनशिप आपका स्पाउस का साथ, हस्बैंड का साथ, वाइफ का साथ, बच्चे का साथ, कॉलीग का साथ, बॉस का साथ, बिजनेस का साथ, कस्टमर का साथ, वेंडर का साथ, सबका साथ रिलेशन आपका बढ़ाएगा। आप कुछ सीखने का जो लर्निंग स्किल है आपको बढ़ाएगा, कि आप जब भी दिमाग में प्रेशर देते हो, आप एक जगह पे बैठ के सोचने लगते हो, तो आपका भाई ऐसे कैसे मैं सीखूं, कैसे मैं सीखूं, वो लर्निंग स्किल आपका बढ़ाएगा। तो ये बहुत सारे रीजन है जो कि आपको हेल्पफुल करेगा क्रिटिकल थिंकिंग। एंड इसमें और एक बड़ी बात है, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस लेवल आपका कम करेगा। स्ट्रेस लेवल क्यों कम करेगा? कि आपका नेगेटिव थिंकिंग से जो है, नेगेटिव थिंकिंग को आपको कट कर देगा। आप ओवर बायस नहीं होगे, किसी के साथ युक्ति नहीं करोगे, कोई भी आपको मना करेगा तो उसका मतलब सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, लेकिन आप उसके साथ जुक्ति नहीं करोगे। वो बायस में बहुत सारा मतलब अपना रिलेशनशिप खराब हो जाता है। एंड जैसे मैंने बताया, आपका माइंड क्रिएटिविटी हो जाता है, आप अच्छा कैरेक्टर का उभर आते हो। कोई एक आदमी तो बोलना चाहिए, हाँ ये सुजीत है, दूर से देख के आपका नाम याद रखना चाहिए, आपका पहचान बनना चाहिए, एक कैरेक्टर आप में आ जाते हो आप। एंड आपका जो मेंटल कैपेसिटी है वो बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। आप ब्रॉड जब भी होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग भी होता है। जैसे बड़ा होता है वैसे स्ट्रांग होता है मेंटल कैपेसिटी, जैसे नैरो होता है वैसे वीक होता है। लेकिन जब भी हम लोग सोचने लगते हैं तो उसका ऊपर वो बहुत बड़ा होते होते जा रहे हैं। एंड जब भी आपको बड़ा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम देख लो, उसका बड़ा प्रॉब्लम को सोचते वक्त आप छोटा छोटा में लेके आ जाते हो, छोटा छोटा प्रॉब्लम उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो। आज मुझे ये फिनिश करना है, कल मुझे ये फिनिश करना है, ये सब फिनिशिंग का ऊपर आप देखने लगते हो। आर यू विथ मी? ये हरलाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? आप अनम्यूट कर लो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। ओके ओके ग्रेट। आप कहाँ से हो जयलाल जी? वेस्ट बंगाल। ओके ग्रेट ग्रेट। तो जयलाल जी, एवरी संडे को हम लोग 11 बजे जूम में संडे सक्सेस सेशन अटेंड मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि टोटल फ्री मास्टर क्लास है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का ऊपर हम लोग काम करते हैं। सुजीत हम लोग का साथ लास्ट 1 ईयर पर से 1 ईयर 2 ईयर से जुड़े हुए हैं। एंड एवरी संडे को मतलब सक्सेस तो सबको चाहिए, लेकिन किसी को मेहनत नहीं करना है, किसी को 1 घंटा भी, अपना 1 घंटा भी नहीं देना है। इसलिए हम लोग के पास बहुत कम मेंबर्स है। लेकिन आज का टॉपिक जो क्रिटिकल थिंकिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, आप ज्वाइन होने से पहले ही आपने सुने भी नहीं, शायद सुने भी होंगे, मैंने ये बता के आ रहा था क्रिटिकल थिंकिंग कितना इम्पोर्टेंट है, वो क्यों चाहिए अपने को। एंड उसके लिए ही हम लोग को सक्सेस का एक रास्ता है, पहला पड़ा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग से। तो ये सब जितना है, छोटा छोटा रीजन से, बड़ा रीजन से मैंने आपको बताया, जैसे आपको डिसीजन ले पाओगे एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, आप क्रिएटर बन सकते हो, आपका बेस्ट कैरेक्टर बन सकते हो, आपका जितना भी है व्हाट यू कॉल्स इंटरपर्सनल स्किल्स आप डेवलप कर पाओगे। तो ये मेरी तरफ से है। एंड हाउ टू डेवलप, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो सब बोलेंगे कि सर ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे डेवलप करना है, डेवलप करने का तो बारे में बात करो। तो पहला मैं बात कर रहा हूँ, 5 स्किल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन 521 365 3001, ये सब एक न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल एक ऑस्पिशियस नंबर है। तो मैं आपको 5 टिप्स दे रहा हूँ कैसे आपको डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग। पहला ये है कि आपको दूसरे का बात का ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना, दूसरे का बात का ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। कोई कोई बोलते ना, अरे यार तू बह जाता है यार, कोई कुछ भी बोला तू बह जाता है उसका ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मैं बता रहा हूँ, 97 पीपल आर अंडर दैट, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू गेट द सक्सेस। अगर अपना 130 करोड़ का आबादी है इंडिया में, 130 करोड़ में से 97 पीपल मतलब 126 करोड़ पीपल आर जस्ट स्ट्रगलिंग। ओनली अंबानी अदानी जैसा आदमी ही मतलब सक्सेसफुल है, या कोई भी उनका लाइफ में जो भी आप देखोगे वो गूगल का पीछा ही हुआ या अपना इलोन मस्क का, वो लोग सक्सेस है।
राइट। तो वो लोग किसी के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते हैं, वो दुनिया जो भी बोलेगा वो सुनते रहते हैं, लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं। तो पहला थिंग आपको लेना है, आपको किसी का ऊपर, किसी की बात के ऊपर भरोसा आपको नहीं करना है, इवन आपका ऊपर भी नहीं। आप जो नहीं देखे हो उसका ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, ठीक है। जो आपने नहीं देखे हो उसका ऊपर भरोसा नहीं करना है। जो नहीं देखे हो तो उसका, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? आपको हमेशा एविडेंस का ऊपर रहना चाहिए। जैसे मैंने पहला बताया, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या है, ये एनालाइज करना है आपको, वो ऑब्जर्व करना है आपको, कौन क्या बात कर रहा है, क्या आर्गुमेंट में बात कर रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हो, इंटेंजिबल है या टेंजिबल है, क्या आप महसूस कर पा रहे हो, उसका ऊपर देख के आपको सोचना है। तो आप ना दूसरे का बात के ऊपर भरोसा करना है, ना अपना खुद का सोचने का ऊपर भरोसा करना है, लेकिन जो आप देख रहे हो उसका ऊपर भरोसा करना है। थर्ड है, आपको कम्युनिटी बिल्ड करना है। कम्युनिटी बहुत दोस्तों लोग के साथ बिल्ड करना है। आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, सब कोच का पास जाओगे उन्होंने वही बताएंगे, नेटवर्क इज नेटवर्क। हम लोग का भी एक प्रोग्राम था, नेटवर्क आप कैसे बढ़ाओगे नेटवर्क करने के लिए। आपको अगर धनवान होना है, आपको अगर गुणवान होना है, आपको अगर जो भी बनना है, आपका पास कितना स्ट्रांग है। जो भी भाई, एक मैंने देखा था, शादी के लिए बुलाओगे, तो आप तो शादी के लिए बुलाओगे तो बहुत सारे आदमी आ जाएंगे खाना खाने के लिए, एंड बहुत सारे आदमी कमेंट भी पास कर देंगे किसमें नमक है, किसमें तीखा ज्यादा है, लेकिन कितना आदमी खड़े होते हैं मयत में, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। जो कि ये इम्पोर्टेंट चीज कहाँ से आता है, आप कम्युनिटी ऐसे बिल्ड करना है, एंड वो कम्युनिटी में आपको बात करना है, डिस्कस करना है, जो भी एक प्रॉब्लम्स है, जो भी आप सोच रहे हो वो डिस्कस करना है, एंड डिसमिनेट सॉरी, ये जो मैं 3D फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिसमिनेटिंग, डिसमिनेटिंग आपको शेयर करना है। आपका नॉलेज जितना भी है प्रॉब्लम के ऊपर, आपने जितना भी गहरी तक गए, जितना आप तक सर्वे किए हैं, जितना आपने इवेल्युएट किए हैं, जितना आपने अंदर तक मतलब R&D किए हैं, रिसर्च किए हैं, तो वो सब डिस्कस करना है कम्युनिटी के। कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, कोई कुछ देगा नहीं, लेकिन आप जब ये 3D फॉर्मूला अप्लाई करते हो, वो आपका मतलब इंटरपर्सनल स्किल बढ़ता है, आप एक लेवल से दूसरा लेवल तक चले जाते हो। तो आपको कम्युनिटी डेवलप करना है, डिस्कस करना है उसमें, एंड डिसिमिनेटिंग करना है। लेकिन जैसे मैंने पहला दो बताया, आप जब डिस्कस भी करते हो, आप जब अपना नॉलेज भी शेयर करते हो, तो दूसरे लोग भी बताएंगे आपको, उनके बातों का ऊपर भरोसा नहीं करना है, या आपकी सोच का ऊपर भरोसा नहीं करना है। तीसरा क्या करना है, आपको माइंड में भी स्टोर नहीं करना है, आपको पेन एंड पेपर लेके आना है, पेन एंड पेपर में बुलेट पॉइंट में लिख देना है, सब कुछ बुलेट पॉइंट में। बहुत सारे आदमी है, हाँ यार मैं सोचता हूँ, मैं सोच के रखा हूँ ऐसा करूंगा, दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। दिमाग में मैं बताऊं, जैसे एज पर क्वांटम फिजिक्स, हम लोग का एक दिन में 64,000 सोच, 64,000 विचार, 64,000 ट्रांसफर होता है। तो कोई कुछ रहता नहीं, उसमें बहुत सारा कचरा रहता है, 1% या 2% आपका वैल्यूएबल रहेगा। तो आपने जब भी एक कम्युनिटी बनाए, आपने जब कम्युनिटी में डिस्कस किए, आपने जब अपना नॉलेज शेयर किए, आपने कुछ गेन किए, तभी आप जो सोच रहे हो ऊपर में लिखोगे। Highly, वो that is called a silent communication. Silent communication in the sense communication within yourself. आत्मनिरीक्षण जो बोलते हैं, अपना अंदर से हम लोग बात करेंगे, वो लिखना है आपको, वो लिखने के बाद उसका ऊपर सोचना है। जो बहुत सारा बोलते हैं भाई ज्यादा सोच मत यार, डोंट एनालिसिस पैरालिसिस, ज्यादा आप लोग को सोचना भी नहीं है, लेकिन अपने आप में एनालाइज करना है। ये लिखने का बाद, ये जो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, लिखने का बाद अपनों को एनालाइज करना है। एनालाइज जब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड योर मिरर, दिस इज कॉल्ड योर सॉरी, दिस इज कॉल्ड योर मिरर। तो जैसे मैंने बताया, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इतना आपने कर दिए, करने के बाद अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी क्या है, दो तरीका है। जैसे मैंने बताया, पहला स्टार्टिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये बेस है। जैसे ABCD हम लोग सीखते हैं, वो बेसिक है, वो बेसिक फाउंडेशन हम लोग बोलेंगे, एंड वो क्या रहता है, अभी का जो प्रॉब्लम है उसका ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, लेकिन ये मददगार होगा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विल नेवर एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग।
स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का कोई मजबूत नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग का बिना। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग अभी के लिए फोकस कर रहा है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपको लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करेगा, फ्यूचर के लिए फोकस करेगा, एंड ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा देगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। क्योंकि अभी का जो प्रॉब्लम है, अभी आपने क्रिटिकल थिंकिंग किए, सोच लिए, उसको अप्लाई कर लिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन जब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कर रहे हो तो आप बहुत लंबे समय के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार, 10 इयर्स का गोल बनाओ, 10 इयर्स का गोल बनाओ, वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में जाएगा। 10 साल तक आप रिवर्स गियर में सोचते सोचते होगे कि मुझे क्या चाहिए 10 साल में, एंड उसको पाने के लिए अभी मुझे क्या करना है, रिवर्स गियर में। एंड जो कि मैं बार बार उसमें बता रहा हूँ। तो जवाहरलाल जी, मैं अभी जस्ट ये सेशन में भी बता रहा था, आपने सुने भी होंगे कि नहीं, एवरी कोर्स मेंटर्स आर बिजी इन दिसंबर एंड जनवरी। क्योंकि हर एक आदमी मतलब रिजोल्यूशन बनाते हैं दिसंबर में, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये मानता हूँ, जब भी आपने दिल किए, जब भी आपने निश्चय किए, जब भी आपने डिसीजन मेक लिए, तब भी आप रिजोल्यूशन बनाओ। ना मकर संक्रांति के लिए वेट करो, ना होली के लिए वेट करो, ना न्यू ईयर के लिए वेट करो। रिजोल्यूशन बनाते तो जब भी आपने सोचे तभी बनाओ। लेकिन बनाओ, मेक, डू नॉट सेट। सेट इन द सेंस, आपने किसी का देखे आपने बना दिया, हाँ ये भी मैं भी करूंगा। आपने दूसरे का देखे बना दिए, लेकिन खुद का जैसे बनाना है, तो मैं 2 वीडियो बनाया हूँ। ये 2 वीडियो न्यू ईयर की मैं रिलीज किया हूँ, हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन, हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग गोल। स्ट्रॉन्ग मतलब डबल स्ट्रॉन्गर है, डबल स्मार्टर है, तो वो आपको हेल्प करेगा। सेकंड वीडियो बनाओ, वंस यू सेटअप योर गोल, आपने गोल बना देने के बाद उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो ये वीडियो 20-20 मिनट का है, मेरा यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल आप सक्सेस कोच मानस मारोगे, @सक्सेस कोच मानस, वो आपको आ जाएगा। अदरवाइज दैट तेजस्वी कैन शेयर विथ यू लिंक। तेजस्वी, अगर आप है तो अभी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो अपना यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब का लिंक। तो ये हम लोग बहुत स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाते हैं। हर एक इंसान, हर एक सक्सेसफुल पर्सन एक ग्रेट स्ट्रैटेजिक रहता है, एक ग्रेट स्ट्रैटेजिक थिंकर रहता है, बिकॉज दे आर ग्रेट इन क्रिटिकल थिंकर ऑल्सो। नरेंद्र मोदी को देखो, या अदानी को देखो, या अंबानी को देखो, या बिल क्लिंटन को देखो, या जॉन मस्क को देखो, या सॉरी लियोन मस्क को देखो, सब स्ट्रैटेजिक थिंकर है। वो बहुत का दूर का देखते हैं। जब भी एक कोई फैक्ट्री बनाएगा अंबानी ने, तो 10 साल का बाद बनाएगा, 5 साल का बाद बनाएगा, वो सोचने के बाद आईपीओ आज निकलता है कि ये 10 साल के बाद मेरा बनेगा प्रोजेक्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो वो स्ट्रैटेजिक थिंकर है। एंड स्ट्रैटेजिक थिंकर होने पर वो क्यों, क्योंकि क्रिटिकल थिंकर है। अभी वो सोचते हैं ये आईपीओ में बनाऊंगा तो क्या रिएक्शन आएगा पब्लिक से, क्या कितना गाली सुनना पड़ेगा, कितना हर्डल्स आएगा। ओके, एंड दे आर जस्ट अप्लाइंग दिस थिंग्स टू द स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। सो आपका जो है, आप मैं बता रहा हूँ, आप जो है उसको ही अप्लाई करो। पुट योर जस्ट क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। आप अभी जैसे मैं बताया क्रिटिकल थिंकिंग आपको कैसे करना है बता दिया, अभी मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में आपको कैसे डालना है। बहुत सिंपल है, एंड हम लोग डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे बिटवीन दिस वन आवर। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, वो सब बातचीत करने के लिए, आगे जाने के लिए। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्ट्रैटेजी थिंकिंग कैसे करना पड़ेगा, हम लोग को एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ, 5W1H, सब जानते हैं। 5 वाई, 5 W पूछना है एंड 1 H पूछना है। H मीन्स हाउ, 5 W मीन्स वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, देन हु। पहला थिंग है वाई। अगर आपका कारण पता चला, भाई ये कारण क्या है, मैं काम करूंगा, ये कारण क्या है ये प्रॉब्लम्स का। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आई विल जस्ट टच इन दैट। पहला क्वेश्चन से आपको पूछना है, खुद को पूछना है, ये भाई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है या चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है या चैलेंज है। क्योंकि दोनों का ऊपर आपका एक्शन, आपका रवैया ऐसे रहेगा। अगर वन से आपने देखे ये प्रॉब्लम है या ये चैलेंज है, तभी आपको एक दूसरा पूछना है, भाई ये क्या दूसरा आदमी लोग को जानना जरूरी है, ये मेरा प्रॉब्लम दूसरा आदमी लोग को। सपोज कोई पे रहते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन बॉस को पता नहीं रहता है कि कितना ओवरलोड हो गए, राइट। या अपना बिजनेस करते हैं,
कस्टमर को पता नहीं, स्टेक होल्डर को पता नहीं है कि कितना हम लोगों ने ग्रोथ किए या कितना हम लोग ने नेगेटिव में आ गए। आजकल आप देखे होंगे सब मतलब पब्लिक को, सब जितना बड़े बड़े कंपनी पब्लिक को बताते हैं, थ्रू न्यूज़पेपर बताते हैं, थ्रू मेल बताते हैं कि अपना फाइनेंशियल कितना है बोल के। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो लोग ट्रांसफर करना चालू करते हैं। तो पहला वही, आप जब भी लोग क्वेश्चन, अगर ये प्रॉब्लम्स है या चैलेंज है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए, ये आदमी लोग को जानना जरूरी है क्या। सेकंड आप पूछोगे ये मेरे लिए प्रॉब्लम है या दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम है। अगर मेरे लिए प्रॉब्लम है तो फिर मतलब ये क्या लंबा तक खींचने वाला है या शॉर्ट शॉर्ट प्रॉब्लम से या लॉन्ग प्रॉब्लम से, या दूसरे के लिए, दूसरे के लिए भी शॉर्ट है या लॉन्ग है, क्योंकि आपका अप्रोच वैसा आएगा। आप जो सोचोगे, जो प्रॉब्लम, जो आप डिसीजन लोगे उसका ऊपर ही रहेगा। ये स्ट्रैटेजी थिंकिंग रहता है। ये जब स्ट्रैटेजी आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा है, जैसे मैंने बताया, जैसे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बहुत लंबे पैमाने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, बहुत लार्ज इम्पैक्ट करेगा, बहुत दूरदृष्टि के साथ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन आप, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसको बाद में आप एनालाइज करो कि कौन सा तरीके से आपको जाना है। लेकिन ये एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं अपना सेशन में, एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये मेरा पर्सनल कोचिंग में आता है। कोई 5 डेज का सेशन में, 5 डेज का सीक्रेट टू सक्सेस या 21 डेज का सक्सेस थेरेपी में नहीं आते। ये पर्सनल कोचिंग में आते हैं कि आपको मतलब स्ट्रैटेजी थिंकर कैसे बनना है। एक थिंकर आप बन जाओगे, सोचने वाले बन जाओगे, तो आप ग्रेट, मतलब बहुत बड़े लंबे पेमेंट, लंबे छलांग आप मारोगे, लंबे छलांग आप मारोगे। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी थिंकिंग करना है। जैसे बात मैंने जब पहला व्हाई आपको लेने के बाद आपको बात करना है क्या, व्हाट, क्या करना है अपने को, कहाँ पे करना है, वेयर, कहाँ पे करना है, व्हेन, कभी करना है, फिर किसका साथ करना है, हु, कौन करेगा या किसका साथ मुझे करना है, फिर कैसे करना है। आदमी लोग को क्या होते हैं आजकल, बहुत पागल हो जाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे यार मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं कैसे, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम्स देख के आपको कैसे सॉल्व करना है वो सोचना नहीं है। आपको प्रॉब्लम को समझना है, व्हाई, ये प्रॉब्लम क्यों आया मेरे पास, ये प्रॉब्लम है या चैलेंज है। तो आपको धीरे धीरे आपको उस तरफ लेके आएगा एंड आप ग्रेट ग्रेट लीडर आप बन पाओगे। आर यू विथ मी? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? No. ग्रेट। सो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको करना है। आई विल जस्ट होल्डिंग योर हैंड्स, आई कैन होल्ड योर हैंड्स, लेकिन आपको ही करना है। एंड मेन थिंग है, जब भी आदमी कभी करता है, जब उसका संगत, आदत एंड गुरु रहता है उसका साथ। संगत बहुत मेन इंपोर्टेंट है, संगत के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड आदत सेकंड इंपोर्टेंट है। आपका आदत ही नहीं होगा, हैबिट, हैबिट मीन्स जो प्रैक्टिस 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 में बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिस एक आदत रहता है, नहीं होगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सो इसके लिए दीज आर द ओनली सीक्रेट टू सक्सेस, ये 3 चीजें सक्सेस को हासिल करने के लिए। नाउ इट इज योर टर्न, आपको फैसला लेना है जवाहरलाल जी। जैसे मैं बता रहा हूँ, सुजीत इज आवर ओल्ड मेंटी,